Hello my dear students, how are you all? I hope you all are fine and doing great at home. Today we will understand the third chapter of our subject, which is science. And what is the name of the chapter? Safety first. अच्छा, now you would be thinking कि मैम ने ये सब क्यों बनाया है? मैम आपने ये सब क्यों बनाया है? Yes, what is the situation going on? The situation is COVID-19, the pandemic COVID-19. Because of this, we are in our homes. Yes, you are in your homes. You cannot go to play, you cannot go to school, you cannot go to any mall, anything like that. Okay? So, what should we do? As our chapter's name is safety first, means जो भी हम हमारे लिए कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे लिए सेफ्टी जरूरी है. किससे सेफ्टी जरूरी है? इस वायरस से. यस, वी हैव टू बी सेफ फ्रॉम दिस वायरस. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वायरस? यस, कोरोना और COVID-19. So to be procured, like to be safe from this virus, what should we do? We should wear a mask. Okay? How we should wear a mask? Do you know? Do you know how should we wear a mask? Yes? I hope you all know how to wear a mask. Okay? Then we should wash our hands like this. How we should wash the hands? We should wash our hands with soap and water. Then we should maintain social distancing. We should not stand or we should not sit near each other. We should maintain social distancing. See, there is a void space. Yes, there is a space. Like someone is standing here. We should have 2 feet distance like this. No one should stand beyond that. No one should stand beyond that. Okay? So, I will tell you how to wear a mask. Okay? Just a minute. Yes. So, I will tell you how to wear a mask today. Okay? First, before this, we should sanitize our hands. Yes, before wearing a mask, we should use the sanitizer to sanitize our hands. Just few drops of sanitizer and then you can use it in all of your hand. Your full hand should be sanitized. Okay? Can you see this? Yes. Now I will grab this mask and I will open it. And how to wear this mask? Yes, it has 2 elastics and here there is a clip. Here there is a clip. What should we do? We should wear a mask, adjust the elastics and we should press the clip like this so that it would help to cover our nostril area and the mouth area. Okay? And we should never remove the mask like this. We should never remove the mask like this. What we should do? Keep your fingers from here. Remove the elastic. Then close the mask like this. And then wash it or you can throw it. If it's a reusable mask, then you can wash it. Or if it's a
If it's one time use mask, then you can throw it in the dustbin. Right now I am just keeping back it into the polythene. I will wash it afterwards. After this, we should again sanitize our hands, because we don't know what type of bacteria or viruses are there on the mask or on the elastic of the mask. Yes. So now my hands are sanitized. Now what I'll tell you? I will tell you how to be safe. Yes. How to maintain social distancing. Yes. Why we want to maintain social distancing? क्यों मेंटेन करना है सोशल डिस्टेंसिंग? सब बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? जब भी हम किसी के पास आते हैं, मीन्स जब कोई पर्सन हमारे यहाँ पे है और जब हम किसी के पास में आ रहे हैं, तो हमें एक उससे बिल्कुल पास में रह के बात नहीं करनी है. क्यों नहीं करनी है? क्योंकि जब हम बोलते हैं या जब हम सांस लेते हैं या जब हम करते हैं, फूंक मारते हैं, तब भी हमारे मुंह से, नोज से बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरसेस बाहर निकलते हैं. जब भी हम बात करते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरसेस हमारे मुंह से बाहर निकलते हैं. तो अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी को ये वायरस है, किसी के अंदर ये वायरस है और वो हमसे पास में आके बात करता है, तो क्या होगा? अगर हमने मास्क नहीं पहना होगा तो, या अगर हमने आईज पे कुछ उसका गार्ड नहीं लगा रखा होगा तो वो हमें इन्फेक्ट कर देगा. ठीक है, वो हमें इन्फेक्ट कर देगा और फिर हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हॉस्पिटल में. और बहुत सारी हमें सांस लेने में इश्यूज होंगे, हमारे हाथ पैर दुखेंगे, हमें गले में दुखेगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी हमारे साथ में. ठीक है. सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. हमेशा हमें प्रिवेंटेड रहना है. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. यस, ये सबने सुना ही होगा कि हम पहले प्रिवेंशन कर लेते हैं, क्योंकि बाद में अगर हमें कुछ हो गया तो इसका क्योर करना शायद मुश्किल हो. बट अगर हमारे पास ये सब प्रिवेंशन है, हम मास्क पहन रहे हैं, हम हाथ धो रहे हैं हर 20 मिनट्स में, हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हमें ये वायरस छू भी नहीं सकता. बट अगर हम इनमें से एक भी चीज़ नहीं कर रहे तो ये वायरस की चपेट में हम आ सकते हैं. तो हमें क्या करना है? हमें खुद को प्रिवेंटेड रखना है. ठीक है. ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो घर से बाहर नहीं निकलना है, या अगर घर से बाहर आप जा भी रहे हो तो इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना. अगर आप हैंड वॉश नहीं कर सकते हो, तो जैसे अभी मैं मेरे घर के अंदर नहीं हूँ, तो मैं क्या यूज़ कर रही हूँ? कोई भी कंपनी का सैनिटाइजर हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि जिसमें अल्कोहल कंटेंट 70% है और सैनिटाइज. ओके. या हम घर में भी सैनिटाइजर बना सकते हैं. आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि सैनिटाइजर कैसे बनाते हैं घर में, है ना? तो आप घर का सैनिटाइजर भी यूज़ कर सकते हो. या अगर आप घर में हो तो आप हैंड वॉश करो, बट अगर आप घर में नहीं हो तो हाथों को सैनिटाइज करो. ठीक है. अभी के लिए हम लोग इस पे ही बात करेंगे. ठीक है. उसके बाद हम हमारे चैप्टर पे आएंगे. ओके. What you can do is, if you want to note these points, you can pause the video and you can note these points. Yes. So now we will move forward with our chapter. See, chapter 3 on page number 24. Let us read the chapter and see what we are learning. Okay. Newspaper carry news of accidents almost every day. Accidents cause harm to our life. Okay. Life and property. They cause
pain and suffering. Accidents can be avoided if we follow safety rules at home, at school, on the playground and on the road. Injuries at home are mostly caused by slipping on the floor, burns, electric shocks and chemical poisoning. Make your home safe place to live in. Being aware and alert will go a long way in keeping you safe. So, there are many conditions in which we can get hurt. We can get ourselves injured. How many there are? There are many reasons where we can get injured in the home itself. We can slip on the floor, we can get burned, we can get electric shocks, then we can get chemical poisoning or food poisoning. Okay, so what you can do is, see, can you see a child here, a small child? He has spread all his all his toys on the floor. Yes. What happens if he does like that and light is off and his mama comes and gets slipped on it? Yes. So mama would get hurt. मम्मा को हर्ट हो जाएगा, उससे लग जाएगी. Safety at home. So our first topic is safety at home. Yes. How we can be safe at our homes? Slipping on the floor. A person can slip and fall on a wet floor. Yes. यहाँ पे पानी गिरा हुआ है गलती से, और कोई पर्सन यहाँ से जा रहा है, आगे जाके उसको ये और वो उसको ये पानी के ऊपर वो उसका पैर फिसल जाएगा और वो क्या हो जाएगा? ही विल fall down. Yes, he will fall down because of this water. उसका पैर फिसल के वो गिर सकता है. Tripped over scattered toys, जो ऐसे बिखरे हुए खिलौने होते हैं. आपके बिखरे हुए खिलौनों में बहुत सारी चीज़ें होती है ना? बस होती है, ट्रेन होती है, फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी इसमें व्हील्स होते हैं ना. अब यहाँ पे से कोई पर्सन आ रहा है और उसका पैर इस कार के ऊपर रखा गया, पड़ गया, मीन्स ऐसे, तो वो कार के साथ में आगे तक जाके ऐसे ड्रूम करके स्लिप हो जाएगा, है ना? और उसको बैक इंजरी हो सकती है या लग सकती है. Stumble down the stairs. Stumble down the stairs. ठीक है. अब यहाँ से एक पर्सन उतरने की कोशिश कर रहा है. अब वो यहाँ उतरा, यहाँ पे आया और उसका यहाँ पे पैर इस स्टेयर पे नहीं पड़ के और वो आगे चला गया ऐसे. तो क्या हो सकता है? उसके बैक में दर दर करके वो नीचे गिर सकता है और उसके बैक में इंजरी हो सकती है. सो अभी हम इनको अवॉइड कैसे करेंगे? टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स, कीप द फ्लोर्स एट होम क्लीन एंड ड्राई. टेक केयर दैट द बाथरूम एंड द किचन फ्लोर्स आर नॉट स्लिपरी. जो बाथरूम और किचन की जो फ्लोर्स हैं वो स्लिपरी Do not leave your toys and other things lying
छोड़ना, नहीं तो किसी का पैर उस पर रखा कर वो आगे स्लिप हो सकता है। Use a step ladder or a stool to reach something which is placed high. अगर आपको कुछ उतारना है ऊपर से, ठीक है, तो आप एक एक स्टेप लैडर, एक ऐसी लैडर होती है जो हम घर में यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से कुछ उतारना है, ये बॉक्स उतारना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक लैडर लोगे और फिर इसमें चढ़ोगे, छोटी सी ऐसी छोटी लैडर भी होती है और कुछ स्टूल्स होते हैं, आपके घर में होंगे कुछ स्टूल्स ऐसे, उस पर चढ़ के भी आप निकाल सकते हो। बट आपको निकालने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मम्मा आपको कुछ भी चाहिए तो आपको किसको बोलना है, मम्मी पापा को। और अगर वो लोग नहीं हैं तो आपको वेट करना है, नहीं, ठीक है, ओके। नाउ बर्न्स, एक्सीडेंट्स ड्यू टू फायर। आप क्या कर सकते हैं, एक्सीडेंट ड्यू टू फायर इन द किचन कॉजेज सीरियस इंजरीज, ठीक है। Accidents due to a fire in the kitchen can cause serious injury or even death. जब किसी के घर में आग लगती है तो या तो वो लोग या तो उनको बहुत इंजरी होती है या वो लोग उनकी डेथ भी हो सकती है आग में। To avoid such accidents, one must not wear synthetic clothes in the kitchen. जो सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं, जो नायलॉन होता है या रेयॉन होता है, ये सब चीज़ें हमें वहाँ पे किचन में नहीं पहननी चाहिए, ऐसे कॉटन की क्लोथ्स पहनने चाहिए, ठीक है। सच क्लोथ्स कैच फायर इजीली। वो जो नायलॉन और रेयॉन की क्लोथ्स होते हैं, जो सिंथेटिक फाइबर के क्लोथ्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं और बॉडी से चिपक जाते हैं जलने के बाद। बट ये जो कॉटन के क्लोथ्स होते हैं, अगर इसमें आग लगती भी है तो ये बॉडी से दूर हो जाते हैं अपने आप। जब इनमें आग लगती है तो भी अपने आप बॉडी से दूर हो जाते हैं। गैस स्टोव्स व्हेन नॉट इन यूज मस्ट बी टर्न ऑफ। जो गैस स्टोव्स हम यूज करते हैं वो टर्न ऑफ रहने चाहिए, कभी भी इनको ऑन नहीं रखना चाहिए, नहीं तो एकदम ब्लास्ट हो सकता है। दे मस्ट बी चेक्ड रेगुलरली टू अवॉइड लीकेज। जो लीकेज होता है उसको अवॉइड करने के लिए हम चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, लीकेज को। नाउ इलेक्ट्रिक शॉक्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मेक आवर वर्क इजी, दे शुड बी हैंडल्ड केयरफुली। यस, डू नॉट गेट टू क्लोज टू अ रनिंग टेबल फैन। देखो अब ये जो गर्ल है, दिख रही है, ये क्या कर रही है, ये टेबल फैन के सामने बैठकर अपने बालों में कॉम्ब कर रही है। बट अगर गलती से अगर इसके बाल आगे पीछे जाने की तरह अगर आगे चले जाते हैं तो इसके पूरे बाल फैन के अंदर आ सकते हैं और फिर इसको बहुत ज़्यादा इंजरी भी हो सकती है। तो हमें कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल fittings with wet hands. You may get an electric shock. Do not go too close to table fans or heaters if they are on. बहुत ज़्यादा पास में जाके फैन के सामने या हीटर के सामने हमें नहीं खड़ा होना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उससे कुछ रेडिएशन निकलते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल शॉक्स निकलते हैं जो कि हमें हार्म कर सकते हैं। If someone gets an electrical shock or sees a spark, the main switch must be turned off immediately. अगर गलती से किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो हमें उसे जाके पकड़ना नहीं है, हमें सबसे पहले लकड़ी की डंडी से, लकड़ी की जो स्टिक होती है उससे क्या करना है, मेन स्विच को ऑफ करना है, ठीक है। हमें उसको टच नहीं करना है, उस पर्सन को सबसे पहले मेन स्विच को ऑफ करना है और फिर जब तक वो मेन स्विच ऑफ होता है वो पर्सन नॉर्मल होगा, फिर हम उसको कहाँ ले जाएंगे, डॉक्टर के पास में, ठीक है। पॉइजनिंग, एक्सीडेंटल कंजम्पशन ऑफ केमिकल्स एंड मेडिसिन्स कैन कॉज पॉइजनिंग।
जो मेडिसिन होती हैं, हम क्यों बोलते हैं बच्चों को मेडिसिन नहीं बिना पूछे नहीं खानी चाहिए? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिससे पॉइजन हो जाता है बच्चों के पेट में। जब छोटे बच्चे होते हैं तब उनको मेडिसिन बिना किसी के सुपरविजन के नहीं खानी है। Poisonous chemicals should be properly labeled and kept away from edibles. जो पॉइजनस सब्सटेंसेस है जैसे फिनाइल है, एसिड है, ये सब तो टॉयलेट क्लीनिंग के लिए यूज होते हैं, तो इनको हम कभी भी खाने के साथ नहीं रखना है। हमें जहाँ पे हमारी खाने की चीज़ें रखी है वहाँ पे इनको नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि अगर गलती से कंजम्पशन में आ गए तो हमें पॉइजन कर सकते हैं पेट के अंदर और फिर उसके बाद हमारी डेथ हो सकती है। डू नॉट टेक अ मेडिसिन विदाउट आस्किंग एन एडल्ट। किसी भी बड़े के पूछे बिना आपको मेडिसिन नहीं लेनी है, और इवन बड़े के पूछे बिना भी नहीं। जब तक डॉक्टर आपको नहीं बोलता कि ये मेडिसिन खाओ तब तक आपको नहीं खानी है। कोई आपको कुछ भी बोले कि ये खा लो, आपको नहीं खानी है। हाँ, मम्मा पापा बोले तो आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हो, पर किसी और पर्सन पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है? ओके। और जो छोटे बच्चे होते हैं जो 3 इयर्स से जो कम होते हैं, जो जल्दी से कुछ भी पकड़ के और मुंह में डाल लेते हैं, उनसे भी मेडिसिन बहुत दूर रखनी चाहिए, ऊपर की तरफ रखनी चाहिए ताकि उनका हाथ ना पहुंचे, ठीक है? सो आज हमने सेफ्टी एट होम के बारे में पढ़ा, ठीक है? क्या क्या सेफ्टी रख सकते हैं हम होम में? हम सेफ्टी क्या क्या रख सकते हैं? फर्स्ट, क्या एक्सीडेंट होता है? स्लिपिंग से होता है ना, फिसलने से। यस। दूसरा, बर्न्स। यस। तीसरा, इलेक्ट्रिक शॉक्स। और चौथा, पॉइजनिंग। ठीक है? इनको हम अवॉइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अवॉइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अवॉइड दिस, दिस, दिस एंड दिस। हम इसको, इसको, इसको और इसको अवॉइड कर सकते हैं। स्लिपिंग, स्लिपिंग अवॉइड कर सकते हैं। कैसे? अगर हमारे रूम में टॉयज पड़े हैं, टॉयज बिखरे पड़े हैं, तो हम उसको एक बैग में डाल सकते हैं ताकि किसको इसमें स्लिप ना हो जाए। जो वाटर होता है जो हम क्लीनिंग में यूज़ करते हैं, तो हमारे जो फ्लोर्स होते हैं वो गीले हो जाते हैं, तो उन गीले फ्लोर्स को हमको ड्राई करना चाहिए फैन चला के। देन वी हैव बर्न्स। अब बर्न्स क्यों होते हैं? जब किचन में कोई लीकेज होता है या जब हम ज़्यादा किसी फैन के या नहीं सॉरी जब हम स्टोव या किसी जलती हुई चीज़ के पास जाते हैं तो हम जल सकते हैं। देन वी हैव इलेक्ट्रिकल शॉक्स। इलेक्ट्रिक शॉक्स हमें तब लगते हैं जब हम किसी इलेक्ट्रिकल गैजेट के बहुत करीब होते हैं और उसे या तो राइट हैंड से टच कर लेते हैं, तब हमें इलेक्ट्रिक शॉक्स लगते हैं। और जब इलेक्ट्रिक शॉक्स लगते हैं तब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले मेन स्विच, मेन बटन उसका बंद करना चाहिए, तभी उस पर्सन को हम टच कर सकते हैं। उसके पहले हमें टच नहीं करना है। फिर पॉइजनिंग कैसे होती है? पॉइजनिंग का एक सबसे मेन कारण है कि छोटे बच्चे क्या करते हैं कि वो लोग कुछ भी उठा के खा लेते हैं। अब उन्हें पता नहीं होता है कि इसमें पॉइजन हो सकता है या ये हार्मफुल हो सकती है हमारे लिए, तो वो लोग इसको दवाई को, किसी भी तरह की दवाई को वो लोग खा लेते हैं और फिर उनकी तबीयत खराब हो जाती है। सो हाउ वी कैन बी सेफ एट होम? वी कैन अवॉइड स्लीपिंग, वी कैन अवॉइड बर्न्स, we can avoid electric shocks and we can avoid poisoning.
हमें वो टॉयज को साफ करना है, एक जगह पर रखना है और फ्लोर को बिल्कुल क्लीन कर देना है। और अगर हमारा फ्लोर वेट दिख रहा है तो हमें वहाँ पे फैन चला देना है और उसको ड्राई करना है। बर्न से कैसे बच सकते हैं? किचन में हमें सिंथेटिक फाइबर पहन के नहीं जाना है, जो जल्दी से बर्न होकर चिपक जाता है बॉडी से, वो फाइबर पहन के हमको इसमें किचन में नहीं जाना है। और जो हमारी गैस का स्टोव है उसको हमेशा हमें चेक करना है कि लीकेज ना हो। अभी इलेक्ट्रिकल शॉक्स के लिए हम इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? हम इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? हम जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं या जो भी हमारे स्विचेस हैं उनको हम कभी भी वेट हैंड से, गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए, नहीं तो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक्स लग सकते हैं। और कभी भी किसी फैन, चलते हुए टेबल फैन या हीटर के पास में, बहुत पास में जाके खड़े नहीं होना है, नहीं तो उससे हमें क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। और पॉइजनिंग किससे होती है? जो मेडिसिन होती है उससे पॉइजनिंग होती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो उठाकर कुछ भी खा लेते हैं, तो बाद में वो लोग बीमार हो जाते हैं, कोई भी दवाई खा लेते हैं। तो हमें कभी भी दवाई किसी बड़े से पूछे बिना हमें नहीं खानी है, ठीक है? बड़े भी नहीं, जब तक डॉक्टर नहीं बोल रहा है तब तक हमें दवाई खाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? So yes, that was all for this video and we'll meet in the next video. Bye.